افغانستان میں طالبان کا مکمل قبضہ، سابق صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر تاجکستان چلے گئے۔ بیشتر کابینہ ارکان، اعلیٰ حکومتی شخصیات اور فوجی افسران بھی ملک سے فرار۔ امریکہ اور اتحادی ممالک کے سفارتکاروں اور عملے کا ہنگامی انخلا۔ طالبان کا عام معافی کا اعلان۔ پرامن انتقال اقتدار کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ عبدالستار مرزا قوال: شہریوں کی زندگیاں اور جائیدادیں محفوظ رہیں گی، خواتین کے حقوق، صحافیوں اور سفارتکاروں کی آزادی کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ ترجمان طالبان: افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال، وزیر اعظم کا قومی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ، اجلاس کل ہونے کا امکان۔ افغان سیاسی قیادت پر مشتمل اعلیٰ سطح وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وفد میں اولسی جرگے کے اسپیکر میر رحمان رحمانی، صلاح الدین ربانی، محمد یونس قانونی، استاد محمد کریم خلیلی، احمد ضیاء مسعود، احمد ولی مسعود، عبداللطیف قدرم، استاد محمد محقق اور خالد نور شامل ہیں۔ استنبول میں بحری جہاز ملزم کورویٹ کی پاکستان کے حوالے کرنے کی تقریب، صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی شرکت۔ جہاز زیر آب، سطح، آب اور فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم اور جدید جنگی نظام سے لیس، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے برادر ملکوں کو مشترکہ کاوشیں کرنا ہوں گی۔ ملزم کلاس بحری جنگی جہاز کی شمولیت سے پاک بحریہ کی دفاعی قوت میں اضافہ ہوگا۔ صدر مملکت کا تقریب سے خطاب۔ افغانستان میں امن پاکستان اور خطے کے لیے بہت ضروری ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے کاوشوں میں پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ ترک عوام پاکستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ملزم کلاس کے چاروں جنگی جہاز 2025 تک تیار کر لیے جائیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا تقریب سے خطاب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور برطانوی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کابل سے سفارتکاروں اور عالمی برادری کے افراد کے انخلاء میں سہولت فراہم کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی۔ پاکستان پریس سیکشن کو عالمی میڈیا کی جانب سے کابل سے انخلاء میں سہولت کے لیے سینکڑوں ویزا درخواستیں موصول۔ انٹرنیشنل میڈیا ارکان کی سہولت کے لیے خصوصی سیل قائم کر دیا گیا۔ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے دعا گو ہیں، وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ پوری دنیا میں مقیم کشمیریوں نے بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال اور سول کرفیو نافذ، مقبوضہ وادی فوجی چھاؤنی میں تبدیل۔ لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیری کمیونٹی اور سکھ برادری کا مظاہرہ۔ ملک بھر میں کورونا کی چوتھی لہر جاری، 24 گھنٹے کے دوران وبا سے مزید 67 افراد جاں بحق، 3711 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 6.8% ریکارڈ۔ گزشتہ روز ملک بھر میں 54,204 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ایک قوم ایک نصاب، پہلی سے 5ویں جماعت تک یکساں نصاب کل سے نافذ العمل ہوگا۔ موجودہ تعلیمی نظام ناانصافی پر مبنی ہے، جس نے معاشرے کو تقسیم کر رکھا ہے۔ یکساں نصاب تعلیم ہماری انتخابی منشور کا حصہ ہے، وزیر تعلیم شفقت محمود۔ جمیکا کرکٹ ٹیسٹ کا چوتھا دن، پاکستانی ٹیم دوسرے اننگز میں 203 رنز بنا کر آؤٹ۔ ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 168 رنز کا ہدف مل گیا۔ بابر اعظم 55 رنز بنا کر آؤٹ۔ ویسٹ انڈیز کے جیڈن سیلز کی 5 اور کمار روچ کی 3 وکٹس۔ دوسرے اننگز میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری۔ میچ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ اور کشمیر پریمیئر لیگ پہلے ایلیمنیٹر میں میرپور رائلز کی 4 وکٹوں سے کامیابی۔
ओवरसीज वॉरियर्स इवेंट से बाहर। मीरपुर रॉयल्स ने 161 रन्स का हदफ 18.4 ओवर्स में 6 विकेटों पर हासिल किया। दूसरे एलिमिनेटर में मीरपुर रॉयल्स रावलाकोट हॉक्स के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। मुजफ्फराबाद टाइगर्स की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। दिलचस्प मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सबा रियाज। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना की वबा में नज़ला जुकाम बुखार के मरीज मजालिस में शिरकत से गुरेज करें। जुलूस और मजालिस में शामिल होते वक्त मास्क जरूर पहने और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। आपस में 6 फुट का समाजी फासला बरकरार रखें। बीमारी की हालत में जो मुतबरकात हैं उनको मस्क करने से परहेज करें। न्याज और सबील के लिए डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करें। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें जरूर लगवाएं ताकि आइंदा साल हम मुहर्रमुल हराम को रवायती अकीदत व एहतराम के साथ मिलकर मनाएं। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे अफगानिस्तान की बदलती हुई ताज़ा तरीन सूरत हाल से। अफगानिस्तान में तालिबान ने 20 साल बाद एक बार फिर कब्जा कर लिया है। साबिक सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए हैं। बेशतर काबीना अरकान, कई आला हुकूमती शख्सियात और फौजी अफसरान भी मुल्क से फरार हो गए हैं, जबकि अमरीका और इत्तेहादी ममालिक ने अपने सिफारतकारों और अमले को खुसूसी तैयारों के जरिए काबुल से निकाल लिया है। तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल संभाल लिया है और तालिबान क़यादत, जिसने आज सुबह अपने जंगजुओं को काबुल में दाखिल होने से रोक दिया था, अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे और सिक्योरिटी इदारों के अमली तौर पर मफलूज हो जाने के बाद मुमकिन बदअमनी और लूट मार के खदशे के पेश नज़र अब मुसल्लह कारकुनों को दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल होने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद तमाम अहम इमारतों पर तालिबान के परचम लहरा दिए गए। तालिबान ने काबुल पहुंचने से कबल सिर्फ 10 रोज के अंदर बगैर किसी बड़ी मज़ाहमत के 22 सूबे फतह कर लिए थे और आज सुबह जलालाबाद पर कब्जे के बाद काबुल का मुहासरा कर लिया। लेकिन तालिबान क़यादत ने जंगजुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया और सदर अशरफ गनी को इक़्तिदार छोड़ने और गैर मुल्कियों को बाहिफाजत निकलने का मौका दिया। तालिबान ने अफगान हुकाम और फौजियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हुए कहा कि उनके अहद में किसी किस्म का सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक बयान में अफगान अवाम खुसूसन काबुल के शहरियों को यकीन दिलाया कि उनकी जायदादें और जिंदगियां महफूज हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान क़यादत ख़वातीन के हुकूक, मीडिया नुमाइंदों और सिफारतकारों की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाएगी। जर्मन खबररसां इदारे के मुताबिक साबिक सदर अशरफ गनी ने 2 रोज़ कबल जिन फौजी कमांडरों और कबायली माहिदीन के साथ मुलाकात में तालिबान को शिकस्त देने के आज़म का इजहार किया था, वो सब तालिबान के साथ मिल गए हैं।
काबुल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने से धुआं उठता देखा गया है। बरतानवी न्यूज़ चैनल के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने इमारत खाली करने से कबल हसास दस्तावेजात और आलात को आग लगा दी, जिसके बाद उन्हें चैनविक हेलीकॉप्टर के जरिए अफगानिस्तान से निकाल लिया गया है। बिग्राम बेस, जो गुज़श्ता 20 साल तक अमरीकी ताकत का मरकज़ रहा, अब तालिबान के कब्जे में है और जंगजुओं ने बिग्राम बेस और पुल चरखी जेल में मौजूद तमाम कैदियों को रिहा कर दिया है। अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतह वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। अफगान वफ्द में ओल सी जरगे के स्पीकर मीर रहमान रहमानी, सलाहुद्दीन रब्बानी, मोहम्मद यूनुस कानूनी, उस्ताद मोहम्मद करीम खलीली, अहमद ज़िया मसूद, अहमद वली मसूद, अब्दुल लतीफ़ पेदरम, उस्ताद मोहम्मद मुहक्किक और खालिद नूर शामिल हैं। वफ्द ताज़ा तरीन अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। अफगानिस्तान की तेजी से बदलती सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कौंसिल का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। इजलास कल होने का इम्कान है। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और अफगानिस्तान में अब इक़्तिदार कैसे मुंतकिल होगा, हम देख रहे हैं। जो सूरत हाल बदल रही है, इस पर पाकिस्तान भी इक़दाम कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया है, जबकि पाकिस्तान इस हवाले से क्या इक़दाम कर सकता है, अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान गनी साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तेज़ी से तब्दील हुई है, हम देख रहे हैं कि कल तक जो इत्तला थी 22 सूबों पर कब्जा किया था तालिबान ने 34 में से, और आज वो काबुल पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। कौन से मुहर्रिकात रहे हैं कि इतनी जल्दी तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर? देखें, तारीख ने अपना फैसला सुनाया, इसलिए कि जब आप किसी कौम पर मुसल्लत होने की कोशिश करें ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर, और कौम मुतहद हो और वो उस तसल्लुत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो, तो वही होता है जो अफगानिस्तान में हुआ है। 9 रोज के अंदर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा ये जाहिर करता है कि वहाँ पर लोगों की तायद और हमायत उन्हें हासिल थी। एक रोज पहले जैसे आपने कहा है कि ये खतरात और खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि शायद काबुल पर जब तालिबान आएंगे तो खाना जंगी होगी, अनारकी की कैफियत होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अफगान फोर्सेस ने पहले पसपाई इख्तियार की है और सूरत बेहतरी की तरफ जा रही है, और तालिबान वहाँ पर गालिब आए हैं, वो जदोजहद के जरिए आए हैं। और आज का अफगानिस्तान और आज के तालिबान माजी के तालिबान से बहुत मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास है। उन्हें ये पता है कि उन्हें बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और उन्हें एक सिस्टम वहाँ पर मुहैया करना होगा, उन्हें लोगों की आवाज़ बननी होगी। इसलिए और पाकिस्तान ने शुरू से ये मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि 20 साल से पाकिस्तान ये कह रहा था कि ताकत और कुव्वत के जरिए अफगान मसले का हल नहीं निकल पाएगा, और फिर पाकिस्तान ने सहूलतकार का रोल अदा किया है, तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाए, और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी बेहतरीन थी। और आज भी यही सूरत हाल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छा किया कि कौमी इस्लामी कौंसिल का कल इजलास बुलाया है, और एक वफद जो आया है, देखें ये वफद पहले से शेड्यूल था, लेकिन ये वहाँ का नुमाइंदा वफद है। और इसमें अहम बात यह है कि इसमें शुमाली इत्तेहाद के लोग भी हैं, प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी के बेटे भी हैं, और दीगर लोग भी नुमाइंदा फोर्सेस के लोग हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के हवाले से एक जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है और करेगा। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, और वो लोग जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे थे, खास तौर पर इलाकाई सूरत हाल के अंदर इंडिया का रोल आज उसे इल्हाम सूंघ गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बनी है, इसमें अहम और जिम्मेदाराना किरदार इलाकाई फोर्सेज ने अदा किया है, और इलाकाई फोर्सेज ने सूरत हाल को समझा था, और उनका ये कहना था कि अमन और इस्तेहकाम अफगानिस्तान के अंदर
इस खित्ते के अंदर इस्तेहकाम के साथ मशहूर है। लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर अफगानिस्तान से अच्छी खबरें आएंगी पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए। बिल्कुल सही। सलमान गनी साहब, चूंकि अब सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी मुल्क से चले गए। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आप क्या समझते, कौन से मुहर्रिकात रहे जो अफगान फोर्सेस रेजिस्ट नहीं कर पाई, या हुकूमत से कुछ इख्तलाफात रहे उनके? अशरफ गनी एक कठपुतली हुकूमत थी और मेरे ज़ाती ख्याल में इन्होंने अमेरिका को भी एम्बेरस किया है और अमेरिका ने इससे पहले हामिद करजई और उसके बाद अशरफ गनी को मुसल्लत किया था। वो अफगानों के नुमाइंदे नहीं थे और मैं समझता हूँ कि काबुल के अंदर आज एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है। आपने दुरुस्त कहा कि कल उनके वीडियो मैसेज में जो कुछ वो कहते नजर आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव जाहिर था और उन्हें ये पता था कि जमीन उनके पाँव के तले से छिड़क रही है और उनकी फोर्सेस जो है वो रेत की दीवार साबित हुई हैं। मैं समझता हूँ कि अवाम और अवाम की ताईद और हमारे से बनने वाली हुकूमतें ही मजबूत होती हैं और मुंतखब हुकूमतों के जो इक़दाम होते हैं और जो फैसले होते हैं वो नतीजा खेज होते हैं। लिहाजा आने वाला वक्त इस खित्ते के हवाले से बहुत अच्छा है और तालिबान ने जिम्मेदारी को महसूस किया है। आप देखें कि उन्होंने जो अपने रहनुमा असूल दिए हैं उस पर उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि हम तमाम लोगों को माफ़ करते हैं, अपने मुखालफिन को भी, और उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो उसी तरह चलेंगे, बैंक उसी तरह चलेंगे, तालीमी इदारों में उसी तरह रेगुलर हाजिरी होगी। तो उन्होंने जिम्मेदारी को महसूस किया है। यही वजह है कि इलाकाई फोर्सेस जो आज से कुछ रोज पहले तक ये कहती नजर आ रही थी कि तालिबान अगर खुद काबुल के अंदर आए तो वो इसे तस्लीम नहीं करेंगे। अब की सूरत हाल ये है कि जो स्मूथली वो काबुल के अंदर आए हैं, तो आप देख लें कि इलाकाई फोर्सेस भी उनको अप्रिशिएट करती नजर आ रही है और बैनुल अक़वामी फोर्सेस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी। आप अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से बात कर रहे थे और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल अब नाज़रीन के साथ हम एक दफ़ा फिर शेयर करते चले कि साबिक अफगान सदर अशरफ गनी जो अफगानिस्तान से जा चुके हैं, ताजिकिस्तान पहुँचने के इतरात हैं। उनकी हुकूमत के सीनियर अरकान भी उनके हमरा हैं और तालिबान काबुल पहुंच चुके हैं। तालिबान की जानिब से आम माफ़ी का ऐलान भी किया गया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, यकीनन आप भी इससे बाखबर हैं, क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो इतनी तेज़ी से तब्दील हुई, इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे? अफगान हुकूमत की कमजोरी रही, उनकी फोर्सेस की कमजोरी रही, या फिर तालिबान की स्ट्रेटजी ऐसी थी? असल में दोनों साइड से बात हो सकती है, लेकिन पहले हम तालिबान की स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं। और तालिबान की स्ट्रेटजी को दो एंगल से देखना बड़ा जरूरी है। एक है मिलिट्री एंगल और दूसरा है पॉलिटिकल एंगल। तो आप जब उसको मिलिट्री के एंगल से देखते हैं तो आप देखिए उन्होंने शुरू में जितनी अपना एंट्रेंस पॉइंट थे, एग्जिट पॉइंट थे, जैसे वो जो चेक पोस्ट थी, तोरखम हो गया, ईरान के साथ बॉर्डर हो गया, उज़्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर हो गया, वो उन्होंने कब्जे में किया और वहाँ पे अपने जो गार्ड्स, अपने जो लोग हैं वो बिठा दिए। यानी पूरा अफगानिस्तान उस वक्त एक तरीके का ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ सिमतों से, नॉर्थ से, साउथ से, अगर आप ऊपर जरनाज से नीचे आए, आप नीचे कुंदुस से ऊपर जाएं, फिर इस तरह हरात, फिर इस तरह मज़ार शरीफ, तो वो उन्होंने ऊपर से चारों साइड से रोल डाउन करना शुरू किया काबुल की तरफ। वो पहले काबुल की तरफ नहीं आए। हालांकि अगर जब उन्होंने अपना स्पिन बोल्दा या पायतोरखम के शॉर्ट कब्जा कर लिया था तो वो काबुल पे जा सकते थे, लेकिन हिरात, जलालाबाद, ताजी से हिरात, मज़ार शरीफ और कंधार, ये तीन स्ट्रेटेजिक सेंटर, तीन इकोनॉमिक सेंटर्स है, इकोनॉमिक हब है अफगानिस्तान के, उस पर उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने नीचे रोल डाउन किया। यानी जो एंट्रेंस पे वो बैठे हुए थे, ऊपर से लेके नीचे आ रहे थे और काबुल की तरफ आ रहे थे। और काबुल की तरफ आते हुए उन्होंने कह दिया था कि हम काबुल पे बाय फोर्स कब्जा नहीं करेंगे, हम इसके लिए पॉलिटिकल सेटलमेंट के तौर पे वहां पर आएंगे। उसके साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट के तौर पर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। आप बात कर रहे थे अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, और अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर तालिबान काबुल पहुँच चुके हैं और कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि काबुल पहुँचने से पहले ही तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया। उन्होंने ख़वातीन के हुकूक के लिए, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की भी एक गारंटी दी है। इसी पर बात करेंगे।
स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के मायनाज मारूफ एंकर हैं जावेद इकबाल साहब। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर आप भी बाखबर हैं अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से, कैसे देख रहे हैं? अभी कुछ इकनॉमिक हब्स पे पहले कब्जा किया गया तालिबान की जानिब से, फिर जो एक अच्छी बात है कि उन्होंने बाय फोर्स काबुल पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की और जो शदीद लड़ाई होती रही वो भी महदूद होती चली गई वक्त के साथ। शुक्रिया। मेरे ख्याल में तालिबान ने ये पहले ही ऐलान कर रखा था कि वो काबुल में बज़ौर ताकत दाखिल नहीं होंगे, और जब वो काबुल के अतराफ़ दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने पहले ही एक एलामिया जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो वो जंग नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, और दूसरा आम माफ़ी का ऐलान किया। थोड़ी सी कन्फ्यूजन काबुल के अंदर, बल्कि थोड़ी नहीं काफ़ी कन्फ्यूजन मौजूद थी, क्योंकि तमाम जो रिहायशी लोग थे उनको वो पुराना वक्त याद आ रहा था कि न जाने क्या सूरत हाल होगी और नकल मकानी होगी और सूरत हाल बहुत गंभीर होगी। अगरचे कि कन्फ्यूजन अब भी मौजूद है, लेकिन उस तरह की सूरत हाल नहीं हुई, क्योंकि तालिबान ने यह कह रखा था कि वो काबुल के अंदर जब जाएंगे तो बाई फोर्स नहीं जाएंगे। ये तालिबान बड़े अरसे से मुतालबा कर रहे थे साबिक सदर अशरफ गनी से कि वो आएँ, बातचीत करें, लेकिन अशरफ गनी साहब भी शायद अपने दौरे सदारत को तूल देते रहे और सूरत हाल यहाँ तक पहुँची। अब आप देख रहे हैं कि इतलात ये हैं कि अशरफ गनी वहाँ से चले गए हैं, वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है, और अब्दुल्ला जो पहले ही इन मुज़ाकरात के दौरान जो अफ़गान सदर और साबिक सदर और तालिबान के दरमियान हो रहे थे, तो उस दौरान वो सालिस का किरदार अदा कर रहे थे। तो अब उस काउंसिल में गुलबदीन हिकमतयार, अब्दुल्ला और ख़ुद जो हैं हामिद करज़ई शामिल हैं। अब ये पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार करेंगे। अब इसमें सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि इतलात ये आ रही हैं कि नई उबूरी हुकूमत के हवाले से बात होगी, लेकिन अभी ताज़ा तरीन इतलात यह आई है कि तालिबान ये कह रहे हैं कि नहीं, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार उनको होना चाहिए। यानी ये तालिबान की जो 20 साल जो जंग लड़ते रहे हैं, वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि चूंकि अमेरिका ने हमसे हुकूमत ली थी तो हम बराह रास्त फ़रीक हैं, तो इसलिए अब ये हुकूमत भी हमारे हवाले की जाए। ताहम ये बड़ी इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है। बहुत से अफ़गान रहनुमा जो हैं, बड़े इंपॉर्टेंट अफ़गान रहनुमा इस वक्त पाकिस्तान पहुँचे हैं, जिसमें यूनुस कानूनी हैं, अफ़गान नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, अमीर रहमान रहमानी हैं, उस्ताद मुहक्किक हैं, सलाहुद्दीन रब्बानी हैं। ये बड़ी अहम क़यादत है जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पहुँची है। और अभी कुछ देर पहले हमें जो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं मंसूर अहमद ख़ान साहब, उन्होंने बताया है कि आज रात उनसे अहम बातचीत जारी है। फिर कल आपको पता है नेशनल जो काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका भी इजलास बुलाया गया है। तो ये है कि सूरत हाल पाकिस्तान के पड़ोस में यकीनी तौर पर तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जिस तरह से हमेशा से एक बड़ा मस्बत किरदार रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से, और फिर खुसूसन तालिबान को जब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर दोहा में लाए थे तो उसमें भी बड़ा इंतहाई मस्बत किरदार रहा है। तो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो इस किरदार को निभाता रहे। जी, जावेद इकबाल साहब आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। साथ ही हमें ज्वाइन किया है माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर के डॉक्टर किंदील अब्बास साहब ने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर आपका तज्जिया क्या है? सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए, जिस बात को हम प्रेडिक्ट कर रहे थे बिल्कुल उसी तरह चीज़ें आगे बढ़ी हैं, इसलिए कि सबसे पहले तो खुद अमेरिका ने और बड़ी ताकतों ने इसको मिसमैनेज किया, और 20 साल अफगानिस्तान में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके उनका ख्याल ये था कि वहाँ पे उन्होंने एक फौज को ट्रेनिंग दी है और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप बना दिया है, लेकिन हमने देखा कि वो रियत की दीवार साबित हुई, वो फोर्सेस भी और वो जो पॉलिटिकल सेटअप है वो भी। और ख़ास तौर पर जब उन्होंने इनखला का फैसला किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके जो सेटअप है और जहाँ जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए उनका क्या बनेगा। यानी बिल्कुल उन्होंने इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया और यहाँ से निकल गए, और उन्हें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल था कि उनके अपने सफारत खाने के लोगों को एक सिक्योरिटी मिले और उनको निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने एक ब्रिगेड फौज भी भेज दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अफगान अवाम का क्या बनेगा। ये एक मिसमैनेजमेंट हुई। दूसरी मिसमैनेजमेंट मेरा ख्याल है कि अशरफ गनी से हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान के तमाम लोग ये कह रहे थे, उनको लीडरशिप कह रही थी कि अब पावर शेयरिंग के ऊपर आ जाएं। पाकिस्तान ने जो फैसिलिटेट करके एक मुज़ाकरात का आगाज कराया था उसमें भी ये चीज़ें तय पाई थी कि पावर शेयरिंग का कोई फार्मूला तय किया जाए, लेकिन अशरफ गनी आखिरी दम तक ये कहते रहे कि हम काबुल का दिफा करेंगे और हम
घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन जाहिर है कि जिस तरीके से वो यहाँ से काबुल से निकले उसने मजीद मायूस कर दिया है अफगानिस्तान में लीडरशिप को भी और अफगानिस्तान के अवाम को भी। मेरा ख्याल ये है कि अब तालिबान पर सारी जिम्मेदारी आन पड़ी है और जैसे पहले वो मिसमैनेजमेंट का मैंने जिक्र किया, तो ये होगी कि अब तालिबान से ऐसी कोई मिसमैनेजमेंट ना हो और वो जो जो चीज़ों को कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं अब उस तरफ उनको आना चाहिए जो पुरअमन तरीका है किसी मुल्क में। जैसे राब्ता कौंसिल की तरफ वो गए हैं और गुलबदीन अहमदयार, अब्दुल्ला और हामिद करजई को उसका मेंबर बनाया गया। मेरा ख्याल है ये बहुत आसान इकदाम है। इसके साथ साथ अबूरी हुकूमत की भी वो बात कर रहे हैं। अली अहमद जलाली का नाम सामने आया था जो साबिक वजीर दाखिला थे। लेकिन ये चीज़ें अभी बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, वल्लामा सूरत हाल आगे बढ़ रही है। मेरा ख्याल ये है कि इसमें पाकिस्तान ने इंतहाई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है। इस वक्त काबुल में तकरीबन तमाम सफारत खाने बंद हैं, लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाना जो गैर मुल्की पाकिस्तान के रास्ते जाना चाह रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर रहा है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं और अफगानिस्तान की वो लीडरशिप जो पिछले 20 सालों से कभी किस मुल्क की तरफ देखते थे, अब हमने देखा कि एक 10 रुकनी वफ्द भी पाकिस्तान की तरफ आ गया है और पाकिस्तान में वो मुज़ाकरात चाहते हैं जिसमें मीर रहमान रहमानी, इस्लाउद्दीन रब्बानी। जी डॉक्टर कंदील अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें हमारे साथ बात कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से। और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है अफगानिस्तान में और आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कौन सी ऐसे मुहरकात शामिल रहे जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान की ये सूरत हाल है। प्रेडिक्ट ये किया जा रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान को कम से कम 6 माह चाहिए अफगानिस्तान में कंट्रोल हासिल करने के लिए, लेकिन अब गालिबन 9 से 10 दिन में ही ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई हैं। हुमायूं खान, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, आपने हमें ज्वाइन किया है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। हुमायूं साहब, आप क्या समझते हैं अफगानिस्तान की जो सूरत हाल यकलख्त तब्दील हुई है विद इन डेज, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल रहे? वो ट्रेनिंग जो अफगान फोर्सेस को मिली, वो जो इन्वेस्टमेंट्स थी, या फिर तालिबान की तैयारी थी? इसके जी काफ़ी सारे मुहरकात हैं, लेकिन एक ये था कि ये एक्सपेक्टेड था कि तालिबान जब से दोहा में एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद से नेगोशिएशन चल रही थी, तो एक फाइनल जो रिकग्निशन उनको जो मिलनी थी पिछले 20 साल की, जो उनकी तरफ से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही थी कि उनकी एक स्ट्रगल है फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ। तो वो मेरा ख्याल है कि वो पिछले 1 साल से वो ये कोशिशें कर रहे थे और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। जिस तरह मेरे से पहले वाले जो मेहमान थे उन्होंने बताया कि वो जो ट्रेनिंग का फुकदान अगर आप उसको कह लें या कॉज का फुकदान कह लें, क्योंकि वो प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब की जो गवर्नमेंट थी उसको जो है लेजिटिमेसी नहीं मिल सकी जो कि मिलनी चाहिए थी। जो उनका इलेक्शन हुआ जिसके नतीजे में ये गवर्नमेंट बनी, वो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएन ऑब्जर्वर्स जो आए थे उनके मुताबिक, और जो सबसे लोएस्ट टर्न आउट था अफगानिस्तान की हिस्ट्री के इलेक्शन का, वो ऐसे बहुत सारे मुहरकात थे जिनसे उनकी पोजीशन बड़ी वीक थी। फिर वो डिलीवर नहीं कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी। जी बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना की वबा में नज़ला ज़ुकाम बुखार के मरीज मजालिस में शिरकत से गुरेज करें। जुलूस और मजालिस में शामिल होते वक्त मास्क जरूर पहने और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। आपस में 6 फुट का समाजी फासला बरकरार रखें। बीमारी की हालत में जो मुतबरकात हैं उनको मस करने से परहेज करें। न्याज और सबील के लिए डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करें। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें जरूर लगवाएं ताकि आइंदा साल हम मुहर्रमुल हराम को रवायती अकीदत और एहतराम के साथ मिलकर मनाएं।
खबरनामे में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि नए आलमी निज़ाम में पाकिस्तान और तुर्की का किरदार इंतहाई अहमियत रखता है। इलाकाई और आलमी अमन के लिए तुर्की का किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम तुर्की के साथ मुश्तरका मफादात और अमन और खुशहाली के लिए साथ खड़े हैं। सदर ममलिकत इस्तंबुल में तुर्की की जानिब से नेवी के बहरी जहाज मलजम कोरवेट की पाकिस्तानी सुपुर्दगी के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं इकराम महसूल। इस्तंबुल में नेवी के बहरी जहाज मलजम कोरवेट की सपुर्दगी की तकरीब से खिताब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुस्तहिकम दोस्ती का रिश्ता सिर्फ हुकूमतों के दरमियान नहीं बल्कि दोनों कौमों के दरमियान है, जो इखलाकियात और इक़दार पर मबनी है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के ताल्लुकात मफादात की बजाय हमेशा इखलाकियात और इक़दार पर मबनी होनी चाहिए। Pakistan is one of the biggest markets for Turkish defense products. Collaboration between Pakistan and Turkey for the construction of Miljan-class warships not only has unique value for Pakistan's Navy's capabilities and their enhancement, but also prominently stands out as a defining moment to further cement the bonds of friendship between our two nations and our two navies. Pakistan appreciates Turkey's invaluable role towards regional and international peace and stability. सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के इश्तराक से जदीद तरीन बहरी जंगी जहाज की तैयारी पाकिस्तान के लिए बायस मुसरत है। मलजम कोरवेट्स बहरी जंगी जहाज की शमूलियत से पाक बहरिया की दिफाई कुव्वत में इजाफा होगा। ये मिलजम क्लास सब जो फ्रिगेट है, कॉर्वेट है, ये पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये 4 किश्तियों का माहिदा हुआ था। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती गवर्नमेंट्स के दरमियान नहीं है, ये कौमों के दरमियान है और ये सदियों पुरानी दोस्ती है। हमारे दिल इकट्ठा धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। हम दुनिया के अंदर यकसा एतबार से लोगों को बताना चाहते हैं कि अक़दार की कैफियत और मोरालिटी की कैफियत बड़ी अहमियत रखती है। तकरीब से खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मलजम क्लास के 2 जंगी जहाज तुर्की जबकि 2 पाकिस्तान में तैयार होंगे, जिसका मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान 2018 में हुआ था। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ अवाम का मुल्क पाकिस्तान जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान में क़याम अमन पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए बहुत जरूरी है। खित्ते में क़याम अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान का साथ देंगे। तुर्क सदर ने कहा कि मलजम क्लास के 4 जंगी जहाज 2025 तक तैयार कर लिए जाएंगे। तकरीब से खिताब में एहलिया सदर ममलिकत समीना अलवी ने कहा कि बहरी जहाज मलजम कोरवेट के समंदर में उतारे जाने से पाकिस्तान का बहरी दिफा मजबूत होगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि बहरी जहाज मलजम कोरवेट समंदर पर पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम इज्जत और एहतराम और कामयाबी के साथ लेकर चलेगा। तकरीब के बाद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुश्तरका तौर पर मलजम शिप कोरवेट का इफ्तिताह किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी भी इस मौके पर मौजूद थे। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्तंबुल में होने वाली खुसूसी तकरीब तकसीम एजाज़ात में 2 तुर्क शहरियों को पाकिस्तान की तरफ से अवार्ड्स तफवीज़ किए। सदर ममलिकत ने डॉक्टर सलामी क्लेज को सितारा इम्तियाज से नवाजा। डॉक्टर सलामी ने पाकिस्तान में 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले, डेरा मुराद जमाली में एक फील्ड अस्पताल के क़याम और मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब एर्दोगान अस्पताल के क़याम में भी नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। सदर ममलिकत ने प्रोफेसर डॉक्टर जलाल सविदान को सितारा क़ायद आज़म के अवार्ड से भी नवाजा। प्रोफेसर डॉक्टर जलाल सविदान इस्तंबुल यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के सरबराह हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमैन क्राब के माबैन टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़राए ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और आगे बढ़ने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी हम मनसब से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मुल्क ख़्वाह नहीं। अफ़गान फ़रीक़ैन के बेलचक रवैयों से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि तालिबान के मुकाबले में अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस रेत की दीवार साबित हुई, जिस पर आलमी बिरादरी हैरान है।
काबुल से सिफारतकारों और दीगर अफराद के इनखला में सहूलत फराहम कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान रहनुमा अमन और मफाहमती अमल के लिए आलमी बिरादरी की वाज़ेह हिमायत का फ़ायदा उठाएं। आलमी बिरादरी का अफगान रहनुमाओं के साथ राबिता इस्तेवार रखना इंतहाई नागुज़ीर है। मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तस्फ़ीर के सिवा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमन और मफाहमत की राह अपनाने के लिए तमाम फरीकैन पर जोर देते रहेंगे। अफगानिस्तान में खाना जंगी के हमसाय ममालिक के नहायत मनफी असरात मुरतब होने का खदशा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमने बारहा कहा है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। अफगानिस्तान का मसला बातचीत से हल किया जाए। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम अमन चाहते हैं। अफगान मसले का हल अफगानिस्तान की लीडरशिप ने निकालना है। वज़ीर आज़म की इजाज़त से आशूरा के बाद अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक से रब्ता करूँगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम चाहते हैं कि चीन, ईरान, ताजिकिस्तान समेत जितने हमसाया ममालिक हैं वो सब एक पेज पर हों। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के मसले को उलझाने के बजाय सुलझाने की कोशिश करे। ये खैर सगाली का वक्त है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान प्रेस सेक्शन को आलमी मीडिया की जानिब से काबुल से इनखला में सहूलत के लिए सैकड़ों वीज़ा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अपने ट्वीट पे वफाकी वज़ीर ने बताया कि इंटरनेशनल मीडिया के अरकान की सहूलत के लिए एक खसूसी सेल बना दिया गया है। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए हम दुआ गो हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर एक फ़लसफ़ा नहीं, हमारे सामने मौजूद एक हकीकत है। जिन मुल्कों के पास बयानिया ना हो, वो इकट्ठा रहने का जवाज़ ना हो और दुश्मन हर वक्त ताक पे रहे, तो इसके लिए बयानिए की जंग ज़्यादा अहमियत रखती है। चौधरी फवाद हुसैन ने डिजिटल मीडिया के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका आज दुनिया की सुपर पावर इसलिए है कि इसके हमसाए में अमन है, जबकि पाकिस्तान की एक जानिब भारत और दूसरी जानिब अफगानिस्तान है। इस लिहाज से हमारे खित्ते को कुछ मसाइल दरपेश हैं। हमें अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले करना होते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया। उसामा बिन लादेन ने न्यूयॉर्क पर हमला किया। अमरीका ने अफगानिस्तान से इनखला का फ़ैसला किया। ये तमाम फ़ैसले हमसे पूछ कर नहीं हुए, लेकिन इनके असरात का हमें सामना करना पड़ा। अमरीका सुपर पावर बना है तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अमरीका की एक तरफ कनाडा है, एक तरफ जो है वो मैक्सिको है और एक बाकी सारा समंदर है। हमारे एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है। एक बड़ी ट्रबल्ड रीजन है हमारी, और हमें अपनी हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे अपने होते हैं, उसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं। सोवियत यूनियन ने 1979 में अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, हमसे पूछ के नहीं किया। उसामा बिन लादेन ने न्यूयॉर्क को जाके बम कर दिया, हमसे पूछ के नहीं किया। अभी अमेरिका जो है बोरिया बिस्तर उठा के चला गया, हमसे पूछ के नहीं गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहा है और सियासी हल के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है तमाम अफगान फरीकैन अंदरूनी सियासी मसाइल से निमटने के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों, अफगान शहरियों, सिफारतकारों के लिए कौंसलर के हवाले से काम और PIA फ़्लाइट्स के लिए ज़रूरी मावनत फराहम कर रहे हैं। वीज़ा सहूलत के लिए वज़ारत दाखिला में बैनुल वज़ारती सेल कायम कर दिया गया है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया, ताकि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को ये पैगाम दिया जा सके कि भारत उन्हें हक़ के खुद इरादियत देने से मुसलसल इनकार कर रहा है। KMS के मुताबिक पूरे मकबूजा इलाके में मुकम्मल हड़ताल और सिविल कर्फ्यू नाफिज रहा, जिसकी कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मीर वाइज उमर फारूक की सरपरस्ती में कायम हुर्रियत फोरम ने दी थी, जबकि तमाम हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने इसकी हिमायत की थी। भारतीय फोर्सेज की तरफ से दुकानें खुले रखने के सख्त अहकामात के बावजूद सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही और बाजार बंद रहे। काबिज हुक्काम ने इलाके के तूर अर्ज़ में भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात करके वादी बिलखुसूस श्रीनगर को फौजी छावनी और एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया था। श्रीनगर के इलाके सोनावार में वाक़ क्रिकेट स्टेडियम, जहां भारतीय यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब मुनाकिद हुई, इसकी तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया था। भारतीय फोर्सेज के एहलकारों ने लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। मकबूजा इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर्स चस्पा किए गए थे, जिनमें कहा गया था कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई करके रियासती अवाम की मर्जी के खिलाफ कब्जा जमाया है। पोस्टर्स पर भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह है और हम क्या चाहते आज़ादी जैसे नारे दर्ज थे।
कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने एक बयान में भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाने पर आज़ादी पसंद अवाम का शुक्रिया अदा किया। दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अपने बयानात में कहा कि भारत मकबूजा इलाके में अपना यौम आज़ादी बनाने का कोई हक नहीं रखता, क्योंकि इसने रियासती अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी इनकी सरजमीन पर कब्जा कर रखा है। कश्मीर कौंसिल यूरोप के ज़ेर-ए-एहतमाम ब्रसल्स में सेमिनार के मुकर्ररीन ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मजालिम की मजम्मत करते हुए इलाके में भारतीय जबर इस्तेबदाद के खात्मे का मुतालबा किया है। KMS के मुताबिक ब्रसल्स और फ्रैंकफर्ट में भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। तारकीन वतन, पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिखों की बड़ी तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। मुकर्ररीन ने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में फौजी मुहासरा फौरी तौर पर ख़त्म और सियासी नज़रबंदों को बिला ताख़ीर रिहा करे। भारतीय तारकीन वतन ने लंदन के वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज पर बैनर आवेज़ा कर दिया, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का मुतालबा किया। आज़ाद कश्मीर में भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। यौम स्याह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चेयरमैन कश्मीर कमेटी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस समेत एहतजाजी मुजाहिरों की तफसीलात हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान से जानते हैं। यौम स्याह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने ईवान वज़ीर-ए-आज़म मुज़फ़्फ़राबाद में चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार खान आफरीदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये पैगाम देते हैं कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कश्मीरी अकेले, हर जगह कश्मीरियों के लिए ये कहा मैं कश्मीरियों का सफीर बन के काम करूंगा, और उन्होंने सच करके दिखाया, पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को उजागर किया। इस मौके पर चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार खान आफरीदी ने कहा कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर जोश जज्बे के साथ एक त्यौहार के तौर पर मनाया, जबकि भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। मुज़फ़्फ़राबाद से पूरी दुनिया को 14 अगस्त का जो मैसेज दिया गया वो सिर्फ एक था, और वो क्या था? फेस्टिविटी, खुशहाली, अमन, आजादी। आज ब्लैक डे, ये जो आज सॉलिडेरिटी है, ये जो यकजहती है, मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मासूम माओ, बहनों, बुजुर्गों, जवानों और वो तमाम लोग जो जुल्म का शिकार हैं, तो आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक दफा फिर सिर्फ एक्सपोज हो रहा है। यौम स्याह के मौके पर मुजफ्फराबाद के शहीद बुरहान वानी चौक में जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल और पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के जेर एहतमाम बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। मुकर्ररीन ने एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा दोहराया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का नोटिस ले और कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हक खुद इरादियत दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने अपने मादरे वतन पर भारत के मुसलसल गैर कानूनी कब्जे और मोदी की फिस्ताई हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया। तफसील बता रहे हैं अमजद अली। भारत में यौम आज़ादी लेकिन कश्मीरियों के लिए यौम स्याह। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और मोदी हुकूमत के जुल्म जबर और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर के कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को फौरी तौर पर ख़त्म करने और कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने का मुतालबा किया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। इस मौके पर सिविल कर्फ्यू नाफिज किया गया, जिसकी कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम ने दी, जबकि तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने इसकी हिमायत की। काबिज भारतीय हुकाम ने फौजियों और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात करके वादी कश्मीर बिलखसूस श्रीनगर को फौजी छावनी और एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। श्रीनगर के स्टेडियम जहां भारतीय यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब मुनक्किद होना थी की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया। काबिज हुकाम ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को भारत के यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करने का भी हुक्म दिया। इसके बरक्स 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर श्रीनगर और वादी के दूसरे इलाकों में बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की तैनाती के बावजूद लोगों ने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए घरों और दीगर इमारतों पर सब्ज हिलाली परचम लहराए।
उन्होंने दीवारों, खंभों और सतूनों पर पोस्टर चिस्पा किए जिन पर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। कश्मीरियों की भारत से नफरत और पाकिस्तान से मोहब्बत इस बात का आकाश है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत में हुकूमती सतह पर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, मगर दूसरी जानिब भूख, नंग और हुकूमती मजालिम के शिकार अवाम सड़कों पर दुहाइयां दे रहे हैं। जी नाजरीन, मोदी सरकार के जालिमाना ज़रई कानून के खिलाफ भारतीय किसानों ने यौम आज़ादी मनाने की बजाय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की सड़कों पर एहतजाजी ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की रियासतों में भी रैलियां निकाली, जिनमें मोदी हुकूमत के वहशाना मजालिम और इम्तियाजी कानून के खिलाफ नारे लगाए। किसानों ने इस अज़म का इजहार किया कि वो अपने हुकूक की जंग जारी रखेंगे और नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट जमात बीजेपी को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए पूरी कुव्वत और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। किसान इससे कबल 26 जनवरी को भी भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली के लाल किले से तिरंगा उतार कर अपना झंडा लहरा चुके हैं। इस मौके पर शदीद हंगामे भी हुए हैं। नाज़रीन, कुछ कोरोना की सूरत हाल से आपको आगाह करें। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 67 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 3711 नए केसेस रिपोर्ट हुए। तफसील बताएंगे यासिर हुसैन। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुल 54,204 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,711 नए केस मुस्बत आए। वबा से 67 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 24,406 हो गई है। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। दूसरी जानिब मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 4,26,88,545 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,15,000 से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। एनसीओसी की जानिब से बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका समेत 15 मुल्कों को कैटेगरी सी में रखा गया है। दीगर तमाम ममालिक को कैटेगरी बी में रखा गया है। तमाम कैटेगरीज के ममालिक से आने वाले अफराद पर कोरोना टेस्ट के प्रोटोकॉल लागू रहेंगे। पॉलिसी पर नजरसानी 15 सितंबर को की जाएगी। कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद भी जरूरी है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एबटाबाद में सरसब पाकिस्तान के लिए की गई कोशिशों में नुमाया खिदमत पर मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि जदकार बांदा के मकाम पर बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में सरसब्ज होने से पहले और बाद की तस्वीर भी शेयर की। किसान तंजीमों ने मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपए के जुर्माने के तारीखी फैसले को सराहते हुए कहा है कि शुगर माफिया को एहतसाब के कटहरे में लाना यकीनन मौजूदा मुल्क की क़यादत का बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर और दीगर किसान रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता रहे हैं। लाहौर से मोहम्मद शकीर मलिक। मुल्क में गन्ने की मजमूई पैदावार 6.8 मिलियन मेट्रिक टन सालाना है। गन्ने की बेहतर पैदावार के हसूल के साथ साथ काश्तकारों को जो बड़ा चैलेंज दरपेश होता है वो गन्ने की शुगर मिलों को फरोख्त और बर वक्त अदायगी है। शुगर माफिया न सिर्फ काश्तकारों से गन्ने की खरीदारी में ताखीर करता है बल्कि अदायगियों में भी लैतो लाल से काम लिया जाता है। हुकूमत ने गन्ने के काश्तकारों को मिल्स मालकान के इस्तेसाल से बचाने के लिए एक एक्ट पास कर दिया है। अब मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ शुगर मिलों को 44 अरब रुपए का जुर्माना करते हुए शुगर माफिया को एहतसाब के कटहरे में ला खड़ा किया है। मुल्क भर से गन्ने के काश्तकारों में इस फैसले से खुशी की लहर दौड़ गई है। हम बार बार कह रहे थे कि ये काश्तकारों का भी इस्तेसाल करते हैं और आवाम का भी इस्तेसाल करते हैं। इनके 1 रुपये रेट बढ़ाने से जो गरीब आवाम पे, पाकिस्तान की आवाम पे बोझ पड़ता है वो 5.5 अरब रुपए का पड़ता है 1 रुपये किलो रेट बढ़ाने से। मैं इस मुसाबकती कमीशन के फैसले को हम सराहते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो 44 अरब रुपए इनसे वसूल करके काश्तकारों में तकसीम किया जाए। आज काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, उसका डीएपी का रेट इस वक्त को 6500 पे पहुंच चुका है। यही 44 अरब उसको देकर वो 4000 पे लाया जाए उसको।
किसान रहनुमाओं का कहना है कि जुर्माने की रकम से काश्तकारों को अद्वियात और खाद में सब्सिडी दी जाए ताकि उनकी पैदावारी लागत में कमी आए और काश्तकार खुशहाल हो। पाकिस्तान के जो किसान है, पाकिस्तान का जो ज़मींदार है, उसके लिए ये बहुत अच्छा फैसला। इस फैसले की हम पूर्ण तईद करते हैं। ये किसानों का पैसा है और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज जिन जालिमों ने किसानों को लूटा है, बहुत अच्छा फैसला है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि शुगर मिलों ने काश्तकारों को गन्ने के दुरुस्त रेट अदा नहीं किए, जिसके बायस वह मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बिजली और खाद की कीमतें कम करने के लिए भी इकदामात करेगी। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, आपको बताएंगे मौसम की सूरत हाल, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना की वबा में नज़ला ज़ुकाम बुखार के मरीज मजालिस में शिरकत से गुरेज करें। जुलूस और मजालिस में शामिल होते वक्त मास्क जरूर पहने और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। आपस में 6 फुट का समाजी फासला बरकरार रखें। बीमारी की हालत में जो मुतबरकात हैं उनको मस्क करने से परहेज करें। न्याज और सबील के लिए डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करें। कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें जरूर लगवाएं ताकि आइंदा साल हम मुहर्रमुल हराम को रवायती अकीदत और एहतराम के साथ मिलकर मनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है और गर्मी से सताए हुए लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। संजावी, कोहलूल और अलाई और दकी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। उधर गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामिर में बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम को तत्ता पानी के मकाम पर बंद कर दिया गया है। तत्ता पानी के मकाम पर 2 गाड़ियां लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं, तहम मुसाफिर और सयाह बाल बाल बच गए।